Hello kids, my name is Pooja. Today I am going to explain you the chapter Bade Bhai Sahab from Sparsh Bhag 2. If you like my description, please like, share and subscribe my channel. So let's start. मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे. My elder brother is 5 years older than me but only 3 classes ahead. Even though he is older, he is not much ahead in studies. उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे. He started studying at the same age when I started. He did not like to work in a hurry when it came to education. This means both brothers began schooling at a similar age. The elder brother believes that studies should be done carefully and slowly, not quickly. इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे. He wanted to lay a strong foundation of the building, जिस पर आलिशान महल बन सके. On this strong foundation, a great palace could be built. He believes if the base is strong, the whole structure, life or career will be strong. If basic learning is strong, then higher education and success will also be strong and impressive. 1 साल का काम 2 साल में करते थे. What should have taken 1 year took 2 years. Because he studied slowly and carefully, he took extra time. कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे. Sometimes even 3 years were needed. He was not in a hurry at all. He was patient and focused on understanding. बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदान बने? If the foundation itself is weak, how can a building stand strong? If the basic knowledge is weak, then advanced studies or success will also fail. मैं छोटा था, वह बड़े थे. I was younger, he was older. The speaker is saying that there is a clear age difference between him and his elder brother. मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे. My age was 9 years and his were 14 years. उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं. He had full right to guide and supervise me because he is older and the older brother is responsible for looking after him, correcting him, guiding his behavior. In Indian families, elder brothers are often treated like a mini guardian. My politeness or discipline was that I considered his order as law. Kanun, law. The younger brother says he was very respectful and obedient. He treated whatever his older brother said like a rule or law that he must be followed. वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे. He was more studious than usual. The elder brother was not an ordinary student. He was very serious and focused on studies. हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे. He used to sit with open books and sometimes draw pictures of birds, dogs and cats on the margin of books or notebooks. Even while studying, he sometimes got distracted or relaxed his mind by keeping books open, drawing small sketches like birds, dog, cats in the margin. हाशिया इज मार्जिन. कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते. समटाइम्स ही वुड राइट द सेम वर्ड और सेंटेंस 10 to 20 times. He used repetition as a learning method. He believed in practice and memorization through writing again and again. कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते. शेर इज पोयम. बार बार again and again. Sometimes he would repeatedly copy a poem in beautiful handwriting. He practiced writing poetry neatly and repeatedly. He focused on both learning and handwriting improvement. कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य. Sometimes he created meaningless word formation without any sense or connection. He would sometimes make random combination of words that had no meaning. मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई. मसलन इज एग्जाम्पल आई सॉ रिटन इन हिज नोटबुक, स्पेशल, अमीना, ब्रदर्स ब्रदर्स, एक्चुअली ब्रदर ब्रदर.
This shows a strange mix of repeated and unrelated words. It looks like repetition of words, mixing names and phrases, no clear meaning. राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था. राधे श्याम, श्री राधे श्याम for 1 hour. This shows he kept repeating names and phrases continuously. After that, there was a drawing of man's face. After all those words, he draw human face. मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा. I tried very hard to understand the meaning of this puzzle but failed. The younger brother tried to understand his elder brother's work but could not. और उनसे पूछने का साहस ना हुआ. I did not have the courage to ask him. He felt shy or inferior, so he did not ask his brother what it meant. वह 9वीं जमात में थे. जमात इस क्लास. मैं 5वीं में. He was in 9th class. I was in 5th. उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटी मुँह बड़ी बात थी. Understanding his work was beyond my capacity. The younger brother felt I am too small to understand his thinking. Let's start second page. मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था. I did not like studying at all. The younger brother clearly says that he had no interest in studies. 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था. Even sitting with book for 1 hour felt like climbing a mountain. For him, studying even for a short time was very hard. मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता. Whenever I got chance, I could leave the hostel and go to the playground. Whenever possible, he escaped from studies and went outside. और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, कभी और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या. Sometimes I flew kites, sometimes paper airplanes. If I met friends, I would talk and enjoy a lot. He spent his time enjoying simple childhood games. He enjoyed socializing and spending time with his friends. कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं. Sometimes I climbed walls and jumped down. कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं. Sometimes I would sit on a gate and enjoy riding like a motor car. लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते. But as soon as I entered the room, I saw the strict face of my elder brother and my courage disappeared. When he came back home, everything changed. His elder brother's strictness made him nervous and scared. उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? His first question was always, where were you? The elder brother always questioned him immediately. हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था. मौन इज साइलेंस. This question was always asked in the same serious tone, and my answer was always silence. The tone was always strict and serious, not soft, and the younger brother could not answer honestly. न जाने मेरे मुंह से यह बातें क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था. I don't know why I could not say that I was playing outside. He wanted to speak the truth, but he couldn't. Fear stopped him from being honest. मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है. My silence showed that I accepted my mistake. Without speaking, his silence showed guilt. और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था. स्नेह और रोष से मिले अपने शब्दों से मेरा सत्कार करें. For my elder brother, there was no cure except loving and strict words together. इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा. If you study English like this, you will study your whole life and still not succeed. The elder brother warns the younger one, if you don't study seriously, you will keep studying forever but will not get results. अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है. English is not a joke that anyone can learn easily. कि जो चाहे पढ़ ले. नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं. Not everyone can become an English scholar. He says English is a serious subject. It's required effort and discipline. Only serious and hard-working people can master it.
यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। वन हैज़ टू वर्क डे एंड नाइट, स्टेन वंस आई एंड बर्न द मिडनाइट ऑयल। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। इवन देन पीपल ओनली प्रिटेंड दे नो इंग्लिश। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। विद्वान इज स्कॉलर्स। इवन ग्रेट स्कॉलर्स कैन नॉट राइट और स्पीक करेक्ट इंग्लिश। बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देख कर भी सबक नहीं लेते। एंड यू आर सो फुलिश दैट यू डू नॉट लर्न इवन आफ्टर सीइंग मी। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है। आई वर्क सो हार्ड एंड यू कैन सी इट विद योर ओन आइज। इफ़ यू डोंट सी इट, इट इज़ योर फॉल्ट एंड योर इंटेलिजेंस फॉल्ट। तुम्हारी बुद्धि का कसूर है, इट्स योर इंटेलिजेंस फॉल्ट। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कभी देखने जाते देखा है? देयर आर फेयर्स एंड शोज, बट हैव यू एवर सीन मी गोइंग देयर? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं। दे आर क्रिकेट एंड हॉकी मैचेस टू। मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता हूँ। आई नेवर गो देयर, आई ऑलवेज स्टडी। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। इवन देन आई स्टे इन द सेम क्लास फॉर 2 और 3 ईयर्स। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद के वक्त गवाकर पास हो जाओगे? एंड यू थिंक यू विल पास बाय वेस्टिंग टाइम इन गेम्स? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। आई टेक ओनली 2 to 3 years पर क्लासेस, यू विल रिमेन स्टेक फॉर एवर। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ। इफ़ यू वॉन्ट टू वेस्ट द टाइम लाइक दिस देन गो होम एंड प्ले। और मज़े से गुल्ली डंडा खेलना एंड प्ले गुल्ली डंडा। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? वाई आर वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। Hearing this scolding, I would start crying. The younger brother becomes emotional and said when his elder brother scolds him. जवाब ही क्या था? What could I even reply? अपराध तो मैंने किया था, लताड़ कौन सहे? I was guilty, so I had to tolerate this scolding. He admits that he had no answer. He knew he was wrong, so he remained silent and accepted this scolding. भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। माई ब्रदर वॉज वेरी स्किल्ड इन गिविंग एडवाइस। द एल्डर ब्रदर वॉज वेरी इंटेलिजेंट इन एक्सप्रेसिंग थाट्स एंड गिविंग मॉरल लेसन्स। ऐसी ऐसी बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। जिगर इज हार्ट, टुकड़े इज पीसेस, हिम्मत करेज। ही वुड से सच पावरफुल थिंग्स and hit me with the sharp words that heart would break into pieces, my courage would break down. His words were very strong and emotionally painful. The younger brother felt deeply hurt by his brother's criticisms. इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था। I did not find within myself the strength to work this hard. और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं। In that despair, I would think, why not go back home? He sometimes felt like leaving studies and going back home. जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं? Why should I spoil my life by doing work that is beyond my ability? He questioned himself. मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। I was ready to remain foolish, but the effort made me dizzy. लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। बट आफ्टर 1 or 2 hours द क्लाउड ऑफ डिस्पेयर वुड गो अवे, देन आई वुड डिसाइड टू स्टडी हार्ड अगेन। झटपट एक टाइम टेबल बना डालता। झटपट इज इमीडिएट। आई वुड इमीडिएटली मेक अ टाइम टेबल। बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करें। विदाउट अ प्लान हाउ कैन एनी वर्क स्टार्ट। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। इन द टाइम टेबल ऑल प्ले टाइम डिसअपियर्ड। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। वेक अप 6 in the morning, wash your face and hands, eat breakfast and sit down to study. 6 से 8 तक अंग्रेजी, 6 to 8 इंग्लिश।
8 से 9 तक हिसाब, 8 to 9 मैथमेटिक्स, 9 से 9:30 तक इतिहास, 9 to 9:30 हिस्ट्री, फिर भोजन और स्कूल, देन फूड एंड स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, एट 3:30 रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल एंड रेस्ट फॉर हाफ एन आवर। 4 से 5 भूगोल, 4 to 5 ज्योग्राफी, 5 से 6 तक ग्रामर, 5 to 6 ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, देन हाफ एन आवर वॉक इन द फ्रंट ऑफ हॉस्टल। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, 6:30 to 7 इंग्लिश कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, देन डिनर आफ्टर 8 to 9 ट्रांसलेशन, 9 से 10 तक हिंदी, फ्रॉम 9 to 10 हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम, फ्रॉम 10 to 11 वेरियस सब्जेक्ट, देन रेस्ट। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो गई। मेकिंग अ टाइम टेबल इज़ वन थिंग, फॉलोइंग इज़ अनदर। द राइटर सेज देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन planning a timetable and actually following it. From the very first day, I started ignoring it. He admits that he could not follow his own timetable. मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। These green field, cold breeze, football games, whistling moves and volleyball energy. It pulled me towards it unknowingly. और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। The playground is full of fresh air, exciting games, moving and energy. He feels he is naturally drawn to games. और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। As soon as I reached there, I forgot everything. Once he start playing, he forget studies completely. वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती। इवन माई डेडली टाइम टेबल, पेनफुल बुक्स एंड एवरीथिंग एल्स वर फॉरगॉटन। और डिसिप्लिन डिसअपीयर्स व्हेन ही गोज टू प्ले। और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। देन माई एल्डर ब्रदर वुड गेट अ चांस टू एडवाइज एंड स्कोल्ड मी। व्हेन ही रिटर्न्स द एल्डर ब्रदर पनिशेस हिम। मैं उनके साय से भागता। आई यूज टू रन अवे फ्रॉम हिज शेडो। ही अवॉइड्स हिज ब्रदर्स आउट ऑफ फियर। उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। आई ट्राई टू एंटर द रूम साइलेंटली सो ही वुड नॉट नोटिस मी। ही स्नीक्स इन क्वाइटली। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। बट हिज आईज वुड कैच मी एंड माई सोल वुड लीव मी। His brother noticed him immediately. He feels extreme fear and anxiety. हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। He felt like a naked sword hanging over my head. He feels constant danger and fear. फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन को जकड़ा रहता है। Even then, like a person trapped between death and disaster, He compares his situation to extreme danger. He feels mentally trapped. मैं फटकार और गुड़कियाँ खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार ना कर सकता था। I could not stop loving games despite scolding and fear. He still loves playing. सालाना इम्तिहान हुआ। The annual exam happened. भाई साहब फेल हो गए। My brother failed. मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। I passed and came first in my class. There is a contrast. Elder brother failed and younger brother became first. मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। Now there was only a gap of 2 years between us. Earlier the gap was 3 years in grades. Now it reduced to 2 years. जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूँ। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? I felt like giving my elder brother a piece of my mind. What happened to all this severe penance of yours? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहता, दर्जे में अव्वल भी हूँ। Look at me. I kept playing to my heart's content and still stood first in the class. लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। But he was so sad and dejected that I genuinely sympathized with him, and the very thought of rubbing salt into his wound seemed shameful.
लज्जास्पद, शेमफुल। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। I felt some pride and increased self-respect. He feels confident about his achievement. भाई साहब का रौब मुझ पर ना रहा. Now I was not afraid of my brother. The fear that once existed, it's gone. आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा था. I started joining games freely. He becomes more carefree. दिल मजबूत था. My heart became strong. He feels mentally stronger. अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, इफ़ ही स्कोल्ड मी अगेन आई वुड आंसर बोल्डली, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। आई वुड से व्हाट डिड यू अचीव बाय बर्निंग योर इन हार्ड वर्क। ही वॉज थिंकिंग आई बिकेम फर्स्ट इवन वाइल प्लेइंग एंड ही इमेजिन्स रिप्लाइंग कॉन्फिडेंटली। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। आई बिकेम फर्स्ट इवन वाइल प्लेइंग। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। इवन दो आई डिड नॉट से इट लाउडली, माई एटीट्यूड सो इट क्लियरली। ही डज नॉट स्पीक बट हिज बिहेवियर शोज एरोगेंस। भाई साहब ने इसे भाप लिया। माई ब्रदर अंडरस्टूड एवरीथिंग। उनकी सहज बुद्धि बहुत तीव्र थी। हिज शार्प माइंड वॉज वेरी क्विक। ही अंडरस्टैंड सिचुएशंस डीपली। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडा की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, वन डे आफ्टर स्पेंडिंग द एंटायर मॉर्निंग प्लेइंग गिल्ली डंडा व्हेन आई रिटर्न जस्ट इन द टाइम फॉर द मील, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। माई एल्डर ब्रदर वर्चुअली ड्रू इट्स स्वॉर्ड एंड पाउंस्ड ऑन मी। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है। आई सी दिस ईयर यू पास्ड एंड इवन केम फर्स्ट इन योर क्लास, सो यू हैव बिकन प्राउडी। मगर भाईजान, घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, बट ब्रदर इवन द ग्रेटेस्ट पीपल कुड नॉट होल्ड ऑन देयर प्राइड। तुम्हारी क्या हस्ती है? वॉट डू यू थिंक यू आर? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। यू मस्ट हैव रेड अबाउट रावण's फेट इन हिस्ट्री। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? वॉट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम हिज कैरेक्टर? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? वॉट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम हिज कैरेक्टर? या यूं ही पढ़ गए? और डिड यू जस्ट रीड इट विदाउट एनी थिंग लर्निंग? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है, पासिंग एग्जाम इज़ नॉट द रियल थिंग। असल चीज़ है बुद्धि का विकास। द रियल थिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। द एल्डर ब्रदर सेज दैट द सिंपलिंग पासिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट अबाउट मेंटल ग्रोथ, नॉट जस्ट मार्क्स। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। वॉट एवर यू स्टडी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। ही एडवाइज दैट लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल। रावण भूमंडल का स्वामी था। रावण वर द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। Ravan is described as very powerful king in the mythology. He had great power and influence. ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। Such kings are called चक्रवर्ती. A चक्रवर्ती is an emperor who rules over many lands. आजकल अंग्रेजों के राज का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। Today the British Empire is very large, but they are not called the चक्रवर्ती. Even though British ruled many countries, they are not true universal rulers. संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। मैनी कंट्रीज इन दी वर्ल्ड डू नॉट एक्सेप्ट ब्रिटिश रूल एंड आर इंडिपेंडेंट। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। रावण रूल्ड द होल वर्ल्ड। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। इवन गॉड सर्व्ड हिम। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। इवन गॉड ऑफ फायर एंड वाटर वॉज हिज सर्वेंट्स। मगर उसका अंत क्या हुआ? बट वॉट हैपन टू हिम इन द एंड? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। प्राइड डिस्ट्रॉयड हिज नेम एंड एग्जिस्टेंस। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। ही वॉज सो डिस्ट्रॉयड दैट नो वन इवन गेव हिम अ ड्रॉप ऑफ वाटर। हिज एंड वॉज ट्रैजिक एंड कंप्लीट डाउनफॉल। आदमी और जो
कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। A person may do anything but should not be arrogant. Humans being can achieve anything but must remain humble. Pride makes a person lose both his word and the next. If ones become proud, they lose both word respect and spiritual value. शैतान का हाल भी पढ़ा होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। You have must read about the story of devil too. The elder brother refers to a mythological example. He used two stories to explain human behavior. उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। He became so proud that he thought no one was a greater devotee of God than him. अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। In the end, he was thrown from heaven to hell. शायरूम ने भी एक बार अहंकार किया था। शायरूम also once became proud and भीख मांगकर मर गया and died begging. तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सर फिर गया है। You have only passed one class and already your head is spinning. The elder brother mocks the younger brother pride. यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। You did not pass because of your hard work. It was just luck, like a blind man hitting a bird by chance. He says the success was accidental. मगर बटेर केवल एक बार हाथ लगती है, बार बार नहीं लग सकती। But a bird can be caught only once like that, not again and again. Luck does not repeat. Random success is not reliable. कभी कभी गुल्ली डंडी में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। Sometimes even in गिल्ली डंडा a blind hit can strike the target. That does not make someone a successful player. इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो सकता। That does not make someone a successful player. सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। A successful player is one who never misses the target. True success is a constant performance. मेरे फेल होने पर मत जाओ। Don't go by my failure. मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। If you come into my class, your teeth will start sweating. जब अलजब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने जमाने पड़ेंगे, when you have to chew the iron grams of algebra and geometry, और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, and you have to study the history of England. बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। Remembering the names of kings is not easy. 8 हेनरी हो गुजरे हैं। So many Henrys have passed by. कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या याद कर लेना आसान समझते हो? Which incident happened during which Henry's reign? Do you think it's an easy to memorize that? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। Write Henry 7 the place of Henry 8 and all numbers disappear. सफा चट completely wiped out. सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। You won't even find a trace, not even a trace. हो किस ख्याल में? What are you thinking? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कौड़ियों चार्ल्स। देयर हैव बीन डजन्स ऑफ जेम्स, डजन्स ऑफ विलियम्स, हॉर्डर्स ऑफ चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है। द माइंड स्टार्ट स्पिनिंग। आंधी रोग हो जाता है। वन फील्स डिजी। इन अभागों को नाम भी ना जोड़ते थे। दीज अनफॉर्चुनेट फेलोज कुडंट इवन कम विद न्यू नेम्स। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारोम, पंचुम लगाते चले गए। आफ्टर वन एंड द सेम नेम दे केप्ट एडिंग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। इफ दे हैव आस्क्ड मी आई वुड हैव गिवन देम 10 लाख नेम्स। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह। ज्योमेट्री इज जस्ट गॉड सेव अस। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। Instead of writing ABC, if we wrote ACB, then all marks were cut. कोई इन निर्दयी मम्मथिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है। No one asked this merciless examiners then what is the difference between ABC and ACB? और व्यर्थ की बातों के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो?
and why they shed students' blood over such pointless things. दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? Whether one ate lentils, rice bread or rice lentils bread, what difference does it make? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह? But what do these examiners care? वह तो वही देखते हैं जो पुस्तकों में लिखा है. They only look at what is written in the book. चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें. They want boys to memorize every single letter by letter. और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है. And they have left the name of this cramming as education. और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से फ़ायदा. And after all, what the benefit is there in studying such nonsense things? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा. If you drop a perpendicular on this line, the base will be twice the height. पूछिए इसके प्रयोजन. You may ask what is the point of that? दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए मेरी बला से. Whether it's twice as much, 4 times as much or stays half, what do I care? लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी. But if I want to pass the exams, I have to memorize all this nonsense. कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो. He said write an essay on time management, not less than 4 pages. अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए. नाउ यू ओपन द नोटबुक, टेक अ पेन एंड स्टार्ट राइटिंग. कौन नहीं जानता समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है. एवरीवन नोज टाइम मैनेजमेंट इज़ अ गुड थिंग. इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है. दिस ब्रिंग डिसिप्लिन इनटू अ पर्सन्स लाइफ. दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है. Others begin to feel affection for him and start his business progress. लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? But why write 4 pages on such a simple thing? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत? If something can be said in just 1 sentence, why stretch it to 4 pages? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ. यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए. आई कॉल दिस स्टुपिडिटी नॉट टाइम मैनेजमेंट. दिस इज़ नॉट सेविंग टाइम बट वेस्टिंग इट. हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो झटपट कह दे और अपनी राह ले. वी वॉन्ट पीपल टू से थिंग्स क्विकली एंड मूव ऑन. मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रगड़ने पड़ेंगे चाहे जैसे लिखी, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप के आकार के. बट नो, यू मस्ट फिल 4 पेजेस. इवन पेजेस मस्ट फुल स्केप साइजेस. यह छात्रों पर अत्याचार नहीं है. इज दिस नॉट टॉर्चर फॉर स्टूडेंट्स? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो. द एब्सुर्डिटी इज दैट दे टेल यू राइट इन ब्रीफ. समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो. Write a brief essay on punctuality that is no less than 4 pages long. ठीक, फाइन. संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते. So 4 pages counts as brief, otherwise they would likely have you write 100 or 2. तेज भी दौड़िए और धीमे भी, उल्टी बात है या नहीं? It's like being told to run fast and walk slowly at the same time. Is it a contradiction? Is it not? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं. Even a child can understand such a simple thing, but these teachers haven't even that much sense. उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं. And yet they claim the title of teacher. मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे. When you reach my grade, my lad, you will have to grind through all these hardships. और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा. And only then you will realize the true reality of life. इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते. If you are first in class, you don't even touch the ground. इसलिए मेरा कहना मानिए. लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ. संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है. लिसन केयरफुली टू मी.
Even though I have failed 1,000 times, I am older than you and I have much more experience of the world than you. Regret it. स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब तक समाप्त होती. School time was drawing near, otherwise God knows when this chain of sermons would have ended. भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था. The food felt tasteless to me today. जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर शायद प्राण ही ले लिए जाएं. If I am being treated with such contempt just for passing, if I were to fail, they would probably take my very life. भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया. The terrifying picture my brother painted of the studies in his grade left me fearful. स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है. Is it wonder I did not run home and abandoned school altogether? लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही. Yes, despite such humiliation, my lack of interest in books remained as it was. खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता था. I would not let any opportunity to play slip away. पढ़ता भी मगर बहुत कम. I did study but very little. बस इतना कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े. Just enough to finish the daily task and avoid being shamed in class. अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन काटने लगा. The self-confidence that had developed within me vanished again and the life began to pass like that of a thief once more. फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए. Again the annual exams result came out. The yearly examination results were declared once more. Something strange happened. I passed again and my brother failed. The younger brother succeeded again while the elder brother fails again. This time also the same pattern repeats. मैंने बहुत मेहनत नहीं की. I did not study much. पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया. But I still came first in my class. मुझे अचरज हुआ. I was shocked. He himself cannot understand his success. He feels it is unexpected. भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया. माई ब्रदर वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड. द एल्डर ब्रदर पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. ही स्टडीड विद फुल डेडिकेशन. कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे. ही मेमोराइज्ड एवरी वर्ड ऑफ द कोर्स. 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर. ही स्टडीड लेट एट नाइट टिल 10 PM. ही वोक अप एट 4 in the morning. 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले. He studied before school from 6 to 9:30. मुद्रा कांतिहीन हो गई थी. His face had lost all freshness. मगर बेचारे फेल हो गए. But still he failed. मुझे उन पर दया आती थी. I used to feel pity for him. नतीजा सुनाया गया. वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा. When the result came, he cried and I also cried. अपने पास होने की खुशी आधी हो गई. I felt only half happy about my success. मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता. If I had failed too, my brother would not have been so sad. लेकिन विधि की बात कौन टाले. But destiny cannot be changed. मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया था. Now only 1 year class gap remained between us. मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं. I had a strange thought. If my brother also failed one more time, we would become equal. फिर किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे. Then on which basis he could scold me. लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला. बलपूर्वक is forcefully. But I forced myself to remove this thought. आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं. After all, he scolds me for my good. He realized his brother's intention. मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से. Though I feel bad at times, it is probably due to his advice that I pass with good marks. He acknowledged his brother's influence. अब भाई साहब
बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। नाउ माई एल्डर ब्रदर बिकेम वेरी जेंटल। द एल्डर ब्रदर हैज़ चेंज हिज बिहेवियर, ही इज़ नो लॉन्गर एज स्ट्रिक्ट एज बिफोर। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। इवन वेन ही गॉट अ चांस टू स्कोल्ड मी ही कंट्रोल हिमसेल्फ विथ पेशेंस। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, यह रहा भी तो बहुत कम। Perhaps he now felt he has no longer had the right to scold me, or even if he had, it was very little. मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। स्वच्छंदता इज आज़ादी, आज़ादी मीन्स फ्रीडम। माई फ्रीडम इंक्रीज्ड। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। आई स्टार्ट टेकिंग अनफेयर एडवांटेज ऑफ हिज पेशेंस। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। आई बिगेन टू थिंक आई वुड पास एनी वे वेदर आई स्टडीड और नॉट। मेरी तकदीर बलवान है, माई फेट इज़ स्ट्रॉन्ग। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। बिकॉज ऑफ फियर आई यूज टू स्टडी अ लिटिल बट नाउ इवन दैट स्टॉप्ड। ही बिलीव सक्सेस इज़ अ गारंटीड। मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। आई डेवलप्ड अ न्यू हॉबी ऑफ काइट फ्लाइंग। और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। मोस्ट ऑफ द टाइम वॉज स्पेंट फ्लाइंग काइट्स। स्पेंट ऑल हिज टाइम इन फन। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और इनकी नज़र बचाकर कॉनकोए उड़ाता था। स्टिल आई रिस्पेक्ट माई एल्डर ब्रदर एंड अवॉइड हिज वॉचफुल आइज। कंटिन्यूज टू हाइड हिज एक्टिविटीज। फियर एंड रिस्पेक्ट स्टिल एग्जिस्ट। मांझा देना, कन्ने बनाना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि सब समस्याएं सब गुप्त रूप से ही हल की जाती थी। ऑल काइट मेकिंग, स्ट्रिंग प्रिपरेशन, कॉम्पिटिशन्स वर डन सीक्रेटली। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। आई डिड नॉट वॉन्ट माई ब्रदर टू थिंक आई हैड लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम। ही स्टिल केयर्स अबाउट हिज ब्रदर्स ओपिनियन। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकोया लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। वन इवनिंग आई वॉज रनिंग टू कैच अ काइट। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। My eyes were on the sky, my mind on the flying kite. मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। I felt like a soul drifting between heaven and earth. बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। Children were running with sticks to catch kites. किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। No one knew where they were going. सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे हों जहाँ सब कुछ समतल था, ना मोटर कारें, न ट्राम, न गाड़ियाँ। लाइक एवरी वन इज फ्लाइंग इन द स्काई विद दैट काइट वेयर एवरीथिंग इज प्लेन, नो कार, नो ट्रेन्स, नो व्हीकल्स। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। सडनली आई रैन इन टू माई एल्डर ब्रदर, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। वॉज लाइकली रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले। ही ग्रैब्ड माई हैंड देयर एंड स्पोक इन अ फियर्स टोन। इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कॉनकॉय के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? आर यू नॉट अशेम्ड टू बी रनिंग आफ्टर अ हाफ पेनी काइट विद दीज स्ट्रीट किड्स? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। यू हैव नो रिगार्ड दैट द फैक्ट दैट यू आर नो लॉन्गर इन द लोअर क्लास बट यू हैव रीच द 8th क्लास, और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे। एंड नाउ यू ओनली 1 लेवल बिलो मी। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। आफ्टर ऑल अ पर्सन मस्ट हैव सम रिगार्ड फॉर देयर पोजीशन। एक ज़माना था लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल वुड पास द 8th ग्रेड एंड बिकम डिप्यूटी तहसीलदार्स। मैं कितने ही मिडिल लड़कियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। आई नो मैनी मिडलर्स, मिडिल स्कूल ग्रेजुएट्स हु आर टुडे फर्स्ट क्लास डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट्स। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। हाउ मैनी 8th ग्रेडर्स आर आर लीडर्स एंड द एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। ग्रेट स्कॉलर्स वर्क अंडर देयर कमांड। और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कॉन्कवे के लिए दौड़ रहे हो। एंड येट यू हैविंग रीच द सेम 8th ग्रेड एंड रनिंग आफ्टर किड्स विद दीज स्ट्रीट अर्चिन्स।
मुझे तुम्हारी इस कम अक्ल पर दुख होता है। आई एम सैडन्ड बाई योर लैक ऑफ सेंस। तुम ज़हीन हो, यू आर इंटेलिजेंट, इसमें शक नहीं, देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। बट वॉट इज़ द यूज़ एंड इंटेलिजेंस दैट मर्डर्स आर सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ। यू मे थिंक इन योर हार्ट आई एम मेरली वन ग्रेड बिलो माई ब्रदर नाउ। और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। एंड ही हैड नो लॉन्गर हैज़ द राइट टू से एनीथिंग टू मी, बट दिस इज़ योर मिस्टेक। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। आई एम 5 years ओल्डर देन यू। और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ, एंड इवन इफ़ यू वर टू एंटर माई ग्रेड टुडे, और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। एंड इफ़ द एग्जामिनर्स कंटिन्यू दिस वे यू विल श्योरली बी माई इक्वल नेक्स्ट ईयर। और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, एंड परहैप्स इवन गेट अहेड ऑफ मी अ ईयर आफ्टर दैट। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, बट द 5 years डिफरेंस बिटवीन अस, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता, इज़ समथिंग दैट नॉट इवन गॉड कैन इरेज। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। आई एम 5 years ओल्डर देन यू एंड आई ऑलवेज विल बी। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मैच द एक्सपीरियंस आई हैव ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ द लाइफ। चाहे तुम MA और DPhil या DLET ही क्यों ना हो जाए, इवन इफ़ यू अर्न अ MA और DPhil और DLET। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम फ्रॉम रीडिंग बुक्स, इट कम्स फ्रॉम ऑब्जर्विंग द वर्ड। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया। आर मदर नेवर पास एनी ग्रेड। और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए। एंड आर फादर परहैप्स नेवर वेंट बियॉन्ड द 5th और 6th। लेकिन हम दोनों चाहें दुनिया की सारी विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। Yet no matter how much of the world's knowledge we both acquire, mother and father will always retain the right to guide and correct us. केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, नॉट बिकॉज दे आर आर पेरेंट्स, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा, बट बिकॉज दे हैव मोर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड देन वी डू एंड ऑलवेज विल। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए। They might not know the political system of America or how many marriages Henry VIII had, और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, how many stars in the sky। यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम है, लेकिन हज़ारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। But there are thousands of such things about which they have possess more knowledge than you or me। दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पाँव फूल जाएंगे। God forbid, if I were to fail ill today, you would be at your wits' end। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा। You wouldn't think of anything but sending a telegram to father। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, ना घबराए, ना बदहवास हो। But if father were in your place, he wouldn't send a telegram to anyone, nor would he panic or lose his head। पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे। फर्स्ट ही वुड आइडेंटिफाई द इलनेस हिमसेल्फ एंड ट्रीट इट। उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। इफ़ यू वरंट सक्सेसफुल ओनली देन वुड ही कॉल अ डॉक्टर। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चलाते हैं। इलनेस असाइड, वी डोंट इवन नो हाउ टू मेक अ मंथ्स अलाउंस लास्ट अ फुल मंथ। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते और फिर पैसे पैसे का मोहताज हो जाते हैं। वट फादर सेंड्स अस वी स्पेंड बाय 20th और 22nd एंड देन वी बिकेम डेस्परेट फॉर एवरी पेनी। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। वी स्टॉप ईटिंग ब्रेकफास्ट एंड स्टार्ट हाइडिंग ऑफ आवर फेसेस फ्रॉम द वॉशरमैन एंड द बार्बर। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे।
Yet, with half of what we spend today, father lived the greater part of his life with honor and a good reputation, supporting a family of 9 people in total. अपने हेडमास्टर को ही देखो, लुक एट आर हेडमास्टर, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के. ही हैज़ एन एमए एंड नॉट एन एमए फ्रॉम हियर बट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड. 1,000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? ही अर्न्स 1,000 रुपीज़ बट हु मैनेजेस होम? उनकी बूढ़ी माँ, हिज ओल्ड मदर. हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई. द हेडमास्टर्स डिग्री बिकेम यूजलेस हेयर. पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे. प्रीवियसली ही मैनेज्ड हिज हाउस हिमसेल्फ. द मनी वॉज नेवर इनफ एंड ही रिमेन्ड इन डेप्थ. जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथों में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो. सिंस हिज मदर टुक द मैनेजमेंट इन टू हर ओन हैंड्स, इट इज़ एज इफ द गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी हैज़ एंटर्ड द हाउस. तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो. सो लिटिल ब्रदर, थ्रो आउट ऑफ दिस प्राइड दैट योर हार्ट दैट यू हैव कम क्लोज टू मी इन रैंक एंड नाउ इंडिपेंडेंट. मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे. आई विल नॉट लेट यू गो एस्ट्रे वाइल आई एम वॉचिंग. अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ. इफ़ यू डोंट लिसन टू वर्ड्स आई कैन ऑल्सो यूज़ दिस, शोइंग अ स्लैप. मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हुए. आई नो माई वर्ड्स टेस्ट लाइक अ पॉइजन टू यू. मैं उनकी इस नई उक्ति का नतमस्तक हो गया. आई वॉज हम्बल्ड बाय दिस न्यू लॉजिक ऑफ हिज. मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और मैं भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई. आई ट्रूली फेल्ट माई ओन स्मॉलनेस टुडे एंड अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माई ब्रदर अरोज इन माई हार्ट. मैंने सज्जल आँखों से कहा, हरगिज नहीं. आई सेड विद टीयरफुल आईज, नॉट एट ऑल. आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है. What you are saying is absolutely true and you have every right to say it. भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले. My elder brother hugged me and said, मैं कौन-कौवे उड़ाने को मना नहीं करता. मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है. I do not like stopping you from flying kites. My heart also feels like playing. But what can I do? If I go astray, how can I protect you? This responsibility is on my head. The elder brother becomes affectionate and emotional. He shows love instead of anger. He admits he also enjoys it. He is not naturally strict. He understands fun. He reveals his inner feelings. He explains his responsibility and he feels duty bound. संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा. एट दैट मोमेंट अ ब्रोकन काइट फ्लू अबव अस. उसकी डोर लटक रही थी. एज स्ट्रिंग वॉज हैंगिंग लूज. लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा आता था. अ ग्रुप ऑफ बॉयज रैन बिहाइंड इट. भाई साहब लंबे हैं ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली. माई एल्डर ब्रदर वॉज टॉल सो ही जम्प्ड एंड कॉट हिज स्ट्रिंग. और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े. मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था. ran towards the hostel with full speed. I ran behind him. Kids, I hope you like the video, and if you have any doubt, you want to ask any words meaning or anything, whatever you want to ask, you can comment me. I will reply all the comments. And in next video, I will do full Prashna Abhyas. The question answers and all the exercise, whatever it is, I will do for you in next video. Thank you. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.